Good evening. Today we have a new topic regarding environmental governance, that is global environmental governance. In this lecture, we'll learn about everything related to environmental governance, related to Montreal Protocol or Rio Earth Summit, Nagoya Protocol, everything which is related to global environmental governance till date, starting beginning from 1960s and 70s and till date, what are the developments, the timelines, time frame which we will learn today in our class. So let's begin. So the intellectual foundation which was provided during 1960s, early 1960s के timeline पे अगर आप देखेंगे कि there were certain awakening, some institution building they were talking about. We'll talk it entire this governance framework in three phases. First phase is 1962 to 1991, then 1992 to 2014, which is called Rio Framework, and 2015 till present after this Paris conference, Paris deal. Then we will talk about the latest development regarding environmental governance. In the first era that we are talking about from 1962 to 1991, there were intellectual work done by Rachel Carlson. Rachel Carlson, who wrote about the Silent Spring. The name of the book is Silent Spring. The Silent Spring was written by Rachel Carlson. In that, she highlighted the problems related to DDTs, the chemical, pesticides, danger of pesticides on our environment. Next important intellectual foundation was provided by Garrett Hardin's essay, The Tragedy of Commons. In that essay, he highlighted the issues regarding our global commons like oceans, environment, and why there is a need to global regulation and global norms for using our commons, so that if the use should be efficiently done, it should be used efficiently and without pollution or degradation. If it is not regulated, entire humanity will lose our commons. All are going to suffer. Next was Intergovernmental Conference at Ramsar Convention 1971. इसमें क्या हुआ था कि ईरान में एक जगह है रमसार, जहां पे 18 कंट्रीज ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि वी विल ट्राई सर्टेन मेथड्स, टेक्नोलॉजीज और विल क्रिएट अ नॉर्म फॉर रेगुलेशन ऑफ आवर वेटलैंड्स जैसे पॉन्ड, तालाब, ये सब चीज़ें जो हैं इसको हम प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। ये एक यूनाइटेड नेशंस लेवल की कॉन्फ्रेंस नहीं है, कन्वेंशन नहीं है, ये अलग से इंटर गवर्नमेंटल कुछ कंट्रीज आपस में मिलके एक कन्वेंशन सेट करते हैं, जो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 90% ऑफ द कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन में वो आज रमसार के मेंबर्स हैं, रमसार कंट्रीज हैं जो अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। 1972 is the year when the first global level पे कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस कन्वीन करता है, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। यूएनईपी को एक जिम्मेवारी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जो भी रिसर्च हो सकता है, जो भी टेक्नोलॉजी की मदद हो सकती है, इससे आप एक तरीका बताएं जिससे हम ग्लोबल कॉमन्स को मैनेज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो था कॉन्फ्रेंस था यूनाइटेड नेशंस का। 1973 साइट्स मीन्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इंडेंजर्ड विलुप्त होने वाले जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को प्रिवेंट करने के लिए, स्पीसीज के डिक्लाइन को रोकने के लिए एक कन्वेंशन अपनाया गया। 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ये ऐसा रिपोर्ट था जिसने फर्स्ट टाइम इट कॉइंड द टर्म कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इट डिफाइंड आल्सो व्हाट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, which I have highlighted in this presentation, that meeting the present needs without compromising future generations. भविष्य के जनरेशन में जितने भी लोग आएंगे उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए, उनको कंप्रोमाइज़ ना करते हुए, आप ऐसे प्रेजेंट डे में ऐसे एनवायरमेंटल जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, that should not be exploited, that should be exploited in certain limits, so that the future generation also
get the benefit of our natural resources. अब नेक्स्ट जो अगला जो 1987 में जो पड़ाव आता है सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कन्वेंशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अपने आप में पहला आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप कह सकते हैं। इसके सक्सेस के में जो है कि पूरी तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली रेटिफाइड बाय ऑल द कंट्रीज। इसमें क्या था कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था। ओजोन लेयर की वजह से, उसकी डिप्लीशन की वजह से जो भी हमें समस्याएं आ रही थी, जो प्रॉब्लम आ रहा था, टेम्परेचर राइज हो रहा था, अल्ट्रावायलेट रेज का जो रेडिएशन है हम पर पहुंच रहा था, हार्मफुल इफेक्ट ऑन मैनकाइंड, तो उसकी वजह से ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फेज आउट करने की बात की और ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हुआ। तो ये सक्सेस स्टोरी है कि जहां हम ग्लोबली कोऑपरेट करके, टेक्निकल तरीके से कोऑपरेट करके वी कैन प्रोटेक्ट आवर ग्लोबल कॉमन्स एनवायरनमेंट। ये एक सक्सेसफुल एग्जांपल है आपके पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये फेज वन का एंड हो जाता है। फेज वन जो मैंने आपको बताया कि अप टू 1991। इसके बाद नेक्स्ट जो लैंडमार्क ईयर है दैट इज 1992। रियो फ्रेमवर्क, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस होता है और इसमें एजेंडा 21 की बात होती है, एक्शन प्लान की बात होती है। उसमें अग्री करते हैं सारे कंट्रीज कि हम एजेंडा 21 इंप्लीमेंट करेंगे। और थ्री इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो आज भी आप इसको देखेंगे चर्चा में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, CBD, Conservation of Biological Diversity, Convention on Biological Diversity, and UNCCD, that is for combating desertification and land degradation. उसको रोकने के लिए, डिजर्टिफिकेशन ना हो, लैंड डिग्रेडेशन ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए रियो कन्वेंशन, ये तीन फ्रेमवर्क जो आगे चल के आज भी आप उसमें देखेंगे कि इसी फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस FCCCC जो फ्रेमवर्क है उसी के तरह COP, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है हर एक साल रिव्यू करने के लिए कि हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया। इस साल COP 30 हुआ है जो कि ब्राजील में हुआ। इसके पहले COP 29 हुआ था जो अजरबैजान में हुआ था। उसके पहले COP 28 दुबई में हुआ था। तो ये यूनाइटेड नेशंस FCC जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, उस जो फर्स्ट कन्वेंशन है उसी के अंतर्गत ये आता है, उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो साइन हुए जिसको हम लोग रियो कन्वेंशंस कहते हैं। तीनों का नाम आपके सामने है। इस तीनों के में आगे जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अंडर UNFCCC। ये क्या करता है कि एमिशन टारगेट्स के ऊपर टारगेट सेट करता है कि किसके ऊपर, तो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, जो एनेक्स्चर 1 कंट्रीज कहा जाता है, इनके ऊपर एक टारगेट सेट करता है कि आपको अपने एमिशंस को कितना रिड्यूस करना है टाइमलाइन के साथ। और इसमें एक मार्केट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया दैट इज कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग की जो बात होती है। तो मार्केट मैकेनिज्म टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए कार्बन का रिडक्शन करना है और आपस में ट्रेडिंग भी हो सकती है। किसी कंट्री ने कम खर्च किया, किसी ने ज़्यादा खर्च किया, जिसने कम खर्च किया उसने अपने जो लिमिट है उसमें जो अगर बचा के रखा था उसको वो मार्केट में सेल कर सकता है। नेक्स्ट 2000 एंड 2010 दो प्रोटोकॉल का नाम आपके सामने है। ये जो है सेकंड जो हमने अभी जो चर्चा की कि CBD, तीन फ्रेमवर्क थे, UNFCCC और CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो दो इसमें प्रोटोकॉल्स हैं, एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल और दूसरा नागोया प्रोटोकॉल। एक 2000 में साइन हुआ और एक 2010 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल में क्या होता है, तो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसके बायोसेफ्टी की बात हम लोग करते हैं, इसके ऊपर रेगुलेशंस लगाए गए। उसके आप ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट्स, उसके ऑर्गन्स को या फिर उसके पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे हाथी का जो दांत है, जो उसका एलिफेंट टस्क, जिसको जो एलिफेंट का जो दांत है उसको हम लोग ट्रेडिंग को रोकते हैं, उसके इलीगल बनाया गया, क्रॉस बॉर्डर आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही है, जो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं।
उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के ऊपर रेगुलेशंस लगाए गए। नागोया प्रोटोकॉल ये भी अंडर सीबीडी है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फॉर फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज जिन लोगों ने भी प्रिजर्व किया है, जिस भी कम्युनिटी ने एक जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया है और उससे किसी को अगर बेनिफिट मिल रहा है, उससे अगर कुछ मेडिसिन बन रहा है, तो उसका बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए उस कम्युनिटी को जिसने उसका सेफगार्ड किया, जिसको प्रोटेक्ट किया है, उसको बेनिफिट शेयर होना ही चाहिए। तो इसलिए नागोया जापान में जगह है जहां पे ये प्रोटोकॉल 2010 में साइन होता है। नेक्स्ट फेज में हम आते हैं जहां पे यूनिवर्सल गोल की बात करते हैं। जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर हमने टारगेट सेट किया था, एमिशन का टारगेट सेट किया था, बाकी कंट्रीज के ऊपर नहीं था। अब यहां पे क्या सेट होता है इस फेज में, यूनिवर्सल ऑल कंट्रीज विल हैव टू अबाइड बाय एमिशन नॉर्म्स, दे हैव टू रिड्यूस देयर एमिशन। लेकिन जो चेंज है वो हम देखते हैं कि 2015 में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 यूनिवर्सल गोल हैं जो सबके लिए हैं, जो रिप्लेस किया एमडीजीज या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 2000 में आए थे। ये सब क्लाइमेट एक्शन जो है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव वाटर, सब सब जगह के लिए क्लाइमेट एक्शन, ये सब से रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी गोल्स हैं, विमेन एम्पावरमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ गोल्स सेट किए हुए हैं। 2015 जैसा मैंने आपको बताया, पेरिस अग्रीमेंट होता है अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। इसमें यूनिवर्सली एंड लीगली बाइंडिंग एमिशन नॉर्म्स सेट किए जाते हैं और जिसका पर्पस क्या होता है कि 2 डिग्री से कम जो वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इट शुड नॉट क्रॉस 2 डिग्रीज एंड प्रिफरेबली बिलो 1.5 डिग्रीज। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था, उस टाइम से जो टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है उसको 2 डिग्री और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री तक ही रोकने का प्रयास करना। और इसमें जो सोवरेनिटी का रेस्पेक्ट किया गया, लोगों के इंडिपेंडेंट नेशन का जो सोवरेन डिसीजन मेकिंग होता है उसको प्रोटेक्ट किया गया और नेशंस के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप खुद ही डिटरमिन करें कि आप अपना एमिशन टारगेट को खुद ही डिटरमिन करें। इसलिए बोलते हैं उसको एनडीसीज, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। आप खुद कंट्रीब्यूट करें कि आप कितना एमिशन को टारगेट करते हैं, उसको अचीव करें और ये होना चाहिए इन प्रोपोर्शनेट की पूरी दुनिया की। अगर हम लोग देख लें कि सब अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो 1.5 डिग्रीज तक हम लोग उसको रोक के रखें। ये 2015 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आप कह सकते हैं, यूनिवर्सली अग्रीड, यूनिवर्सल, सब सारे पूरी दुनिया कोशिश करेगी कि हम एमिशन को टारगेट करें, एमिशन को रिड्यूस करें। 2022 कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये 30:30, इसमें टारगेट क्या है कि बाय 2030 हम लोग कोशिश करेंगे कि 30% ऑफ द ग्लोबल लैंड एंड सी को हम लोग कंजर्व करें, मैनेज करें, इफेक्टिवली कंजर्व एंड मैनेज 30% ऑफ द ग्लोबल लैंड एंड सी बाय 2030। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 30x30, 30x30। तो ये एक 2022 में फ्रेमवर्क है। 2023 में आते हैं हाई सीज ट्रीटी। हाई सीज ट्रीटी का मतलब होता है, एक तो जो ओशन होता है जो आपके टेरिटोरियल बाउंड्री में आप उसको रखते हैं, देखते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, वहां तक तो आपका कंट्रोल है। लेकिन जो बियॉन्ड जो है उसको हम लोग हाई सीज कहते हैं, जो अगेन इट्स अ ग्लोबल कॉमन। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई सीज ट्रीटी हुई। इसमें बियॉन्ड जो नेशनल जुरिस्डिक्शन जो सीज हैं, वहां पे लीगल फ्रेमवर्क और ओशन गवर्नेंस की बात की गई यहाँ। और इस दौरान क्या होता है, यूएस का विड्रॉवल हो जाता है पेरिस ट्रीटी से। ट्रंप जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो पेरिस ट्रीटी से विड्रॉ कर जाते हैं। फिर उसके बाद जो बाइडेन की सरकार आती है, फिर से वो लोग वापस ज्वाइन कर लेते हैं। अगेन इन जनवरी ट्रंप हैज साइन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम दिस पेरिस ट्रीटी। तो यहाँ पे दिखता है कि कैसे कंट्रीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, ग्लोबल कॉमन के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते हैं। दैट इज नेशनल इंटरेस्ट इज बीइंग प्रायोरिटाइज ओवर ग्लोबल इंटरेस्ट, ग्लोबल कॉमन्स। तो इसको हम लोग समरी करते हैं और आज की क्लास को रोड अहेड क्या होना चाहिए, आगे कैसे इसके ऊपर काम होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अभी तक का जो प्रोग्रेस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक सिंगल इशू ट्रीटी हुआ था ओजोन को लेके, जो मॉन्ट्रियल एक बहुत ही सक्सेसफुल था। अब आज के डेट में एक
इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है हमारे पास, जिसमें क्लाइमेट चेंज को हमने इंटीग्रेट किया है सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन से मिला के, जिसमें एसडीजीज की बात हम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स को एनवायरनमेंट के साथ हम जोड़ के चीज़ों को देख रहे हैं। पेरिस अग्रीमेंट की बात होती है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि ग्रेट स्टेप अहेड। इसमें यूनिवर्सल नॉर्म्स की बात हम करते हैं। लेकिन जो चैलेंज क्या है कि व्हाट इज द कमिटेड, व्हाट वाज कमिटेड बाय द नेशंस एंड इन इम्प्लीमेंटेशन देयर इज अ गैप। जो ट्रीटी जो लोगों ने साइन किया, एक्चुअल नेशनल पॉलिसी एंड एमिशन कट्स जो है उसके बीच में काफ़ी गैप है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमने प्रॉमिस किया था उस लेवल पे हम अपने रिडक्शन को नहीं लेके जा रहे हैं। जो फोकस है, आप देख सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है कि कैसे आप डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अपने क्लाइमेट वाले प्रोजेक्ट को जो फेज आउट करना है फॉसिल फ्यूल्स को, नॉन फॉसिल फ्यूल्स से ग्रीनिंग ऑफ इकोनॉमी की बात होती है। इसमें कैसे हम फंड करेंगे उसको। इसमें हम बात करते हैं कि नो ग्लोबल नॉर्थ है वो क्यों नहीं फिनांस करे ज़्यादा, कैसे इसका फंडिंग हो, इसके ऊपर काफ़ी बहस होती है कि वाई नॉट ग्लोबल नॉर्थ जिन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस पोल्यूशन में, वाई दे शुड नॉट कंट्रीब्यूट मोर। इसको लेके नॉर्थ साउथ के बीच में डिबेट है। देन वी हैव सर्कुलर इकोनॉमी, दैट इज 3R। 3R के प्रिंसिपल पे चलता है कि वेस्ट है उसको, पोल्यूशन है उसको रीयूज की बात करते हैं हम लोग, रिसाइकलिंग की बात करते हैं। तो इसके ऊपर काम होना है, प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस। इक्विटी एंड जस्टिस, इक्विटी एंड जस्टिस इसके बीच में हमेशा से डिबेट रहा है कि कैसे आप इक्विटेबल फेयर पार्टिसिपेशन एंड बर्डन शेयरिंग फॉर ऑल नेशंस, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, CBDR की बात होती है कि इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो इसमें इनइक्वालिटी है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। कैसे साउथ में हम इक्वालिटी इंश्योर करें, कैसे वहाँ पे हम जस्टिस इंश्योर करें कि इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिले। एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो क्यों नहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, एफिशिएंसी की बात होती है और दूसरी तरफ इक्विटी। तो कैसे इसको इंश्योर करें, इसके बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही। The next chapter in governance depends on translating global pacts into local action। यानी जो भी हम लोग ग्लोबल गवर्नेंस नॉर्म सेट किए हैं उसको एक्चुअली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना, देन ओनली वी विल see that global environmental norm is successful, and we wish that this happens so that we protect our global commons for our entire humanity, entire earth. Thank you very much for this lecture, for listening to this lecture. We'll meet again with some new topics on constitution, polity, and international relation, international issues. Till then, goodbye. Thank you. Thank you very much.